So, good morning, all of you. Today, we are continuing our chapter number 2, that is Laws of Forces. Today's topic is force system. We will study about what is a force system. Then we will discuss the various types of forces which are considering under force system. So basically, force system is defined as a collection of two or more forces acting, a, acting on a body in a single plane or more planes. It is shown in figure 2.15. In engineering practice, we face many situations like loaded machines, etc., when a number of forces act simultaneously on their parts. So basically, force system is classified into two parts, that is coplanar and non-coplanar. We will study about various classification in coplanar system, and then after completion of coplanar system, we will study about various classification of non-coplanar system. So first of all, we should understand what is a force system. A force system is a collection of two or more forces acting on a body in a single plane or more planes. As you can see this figure, in this figure it is shown that uh, a body is fixed on one end and different type of forces are acting on the second one. That is F1, F2 and F3. As we can see on east direction, 500 Newton force is applied. On northeast, northwest direction, 300 Newton force is applied. And on south direction, that is F3 force of 700 Newton. So this is basically a force system. So अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें कि फोर्स सिस्टम क्या है, तो फोर्स सिस्टम बेसिकली जहां पर एक दो से ज्यादा फोर्सेस अप्लाई हो रही है, जैसे इस डायग्राम में आपको तीन फोर्सेस दिख रही है, ठीक है। तो जहां पर भी किसी भी सिस्टम में दो या दो से ज्यादा फोर्सेस अप्लाई होती है, सिंगल प्लेन में हो या ज्यादा प्लेन में हो। सिंगल प्लेन का क्या मतलब है, जैसे अगर मैं बोलूं कि एक्स वाई डायरेक्शन में हो रही है, अगर ज्यादा प्लेन्स का मतलब है कि एक्स वाई डायरेक्शन में भी अप्लाई हो रही है, वाई जेड डायरेक्शन में भी हो रही है और जेड एक्स डायरेक्शन में भी हो रही है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेन होते हैं हमारे पास। अगर हम सिंगल प्लेन की बात करें कि अगर फोर्स एक्स वाई डायरेक्शन में ही अप्लाई हो रही है, अगर मैं इस डायग्राम की बात करूं तो ये आपका एक्स डायरेक्शन है, ऊपर कौन सा होता है, वाई डायरेक्शन। तो इसमें आपके एक्स डायरेक्शन में भी अप्लाई हो रही है, यहाँ ऊपर वाई डायरेक्शन है, यानी एक्स और वाई डायरेक्शन के बीच में भी फोर्स अप्लाई हो रही है, और नीचे क्या होता है, नेगेटिव वाई, ठीक है, तो उस तरह भी फोर्स अप्लाई हो रही है। तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल बताया है फोर्स सिस्टम का, ठीक है। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा कि बेसिकली फोर्स सिस्टम क्या होता है। तो सेक्शन बी में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये यूजुअली, कि व्हाट इज अ फोर्स सिस्टम, डिफाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स सिस्टम। तो आपने क्या करना है, फोर्स सिस्टम को लिखना है, जैसे आपको डेफिनेशन लिखवाई है अभी, अ कलेक्शन ऑफ टू और मोर फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन अ सिंगल प्लेन और मोर प्लेन्स। एग्जांपल के लिए ऐसे डायग्राम बना सकते हो आप। तो सबको क्लियर है फोर्स सिस्टम क्या होता है। किसी भी बॉडी में या किसी भी सिस्टम में अगर दो से ज्यादा फोर्सेस अप्लाई हो रही है, सिंगल प्लेन में या ज्यादा प्लेन में, तो बेसिकली वो क्या होता है, फोर्स सिस्टम होता है, ठीक है। तो फोर्स सिस्टम आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्लाइड। So force system is basically classified into two main parts, that is coplanar forces and non-coplanar forces. So first we will discuss about coplanar forces. Coplanar forces are further divided into two parts, that is concurrent and non-concurrent. Coplanar forces, if we discuss about coplanar forces, a force which is applied on a single plane. For example, if I will take a book, like this is a book, and if I will say there is a force applying on a single point on this book, okay, so basically this is X plane. If I will open this book, then it is like this, then there are X plane and Y plane, okay. So basically coplanar forces are the forces which act on a single plane,
like if I will say the forces which are applied on x and y direction only, then it is applied on a single plane. If a force is applied on y and z direction, then it is applied on a single plane. If a force is applied on z and x direction, then it is also on a single plane. So what is concurrent? Concurrent is a point, basically a forces which are acting on a single point. अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं कि कॉन्करेंट क्या होता है, कॉन्करेंट ये होता है कि एक पॉइंट है जिससे सभी फोर्सेस लग रही हैं या एक पॉइंट से सभी फोर्सेस बाहर निकल रही। ठीक है, एग्जांपल के लिए मैं आपको डायग्राम से थोड़ा क्लियर करता हूं। तो मैंने एक पॉइंट कंसिडर कर लिया, उससे एक फोर्स ये लग गई। ठीक है, फिर उसी पॉइंट से आपकी कोई फोर्स ऐसे लग गई। तो सिंगल पॉइंट से अगर फोर्स लग रही है तो ये जो सेंटर पॉइंट है जहां से आपकी फोर्स अप्लाइड होती है, क्या होता है? कॉन्करेंट। ठीक है, किसी एक पॉइंट से फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं या फिर किसी एक पॉइंट पर ही अप्लाई हो रही है। यानी मैं इस डायग्राम को ऐसे भी बना सकता हूं, सभी फोर्सेस कहां पर अप्लाई हो रही हैं? एक सिंगल पॉइंट के ऊपर हो रही है। क्लियर है सभी को? या तो वो सिंगल पॉइंट से बाहर अप्लाई हो रही है या एक पॉइंट के ऊपर ही अप्लाई हो रही है, तो वो कौन सी फोर्सेस होती हैं? कॉन्करेंट फोर्सेस। ठीक है, और नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस क्या होती हैं? अगर मैं बात करूं कि एक फोर्स ऐसे लग गई, दूसरी फोर्स ऐसे लग गई, तीसरी फोर्स यहाँ चले गई, चौथी फोर्स इधर चले गई, पांचवी फोर्स इस तरफ चले गई, तो कोई सिंगल पॉइंट पर नहीं लग रही, तो ये फोर्सेस कौन सी है? नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस। जो फोर्सेस एक ही पॉइंट पर अप्लाई होती है या फिर एक ही पॉइंट से आगे फर्दर डिवाइड होती है डिफरेंट जगह पर, वो होती है आपकी कॉन्करेंट। और जो एक पॉइंट को नहीं फॉलो कर रही, वो फोर्सेस होती हैं नॉन कॉन्करेंट फोर्स। तो आई होप कॉन्करेंट एंड नॉन कॉन्करेंट आपको समझ आ गया होगा। तो फर्दर हमने कॉन्करेंट को दो स्टेप्स में डिवाइड किया है, दैट इज कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या है? अगर फोर्सेज का लाइन ऑफ एक्शन एक ही है, एक ही लाइन पर सभी फोर्सेज लग रही हैं। एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलूं कि मेरे पास ये एक लाइन है, सभी फोर्सेज इसी लाइन में लग रही हैं, तो ये कौन सी होगी? कोलिनियर। यानी लाइन ऑफ एक्शन सभी फोर्सेज का सेम है। ठीक है, और नॉन कोलिनियर कौन सी होगी? जिनका लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक फोर्स ऐसे लग गई, ठीक है जी, दूसरी फोर्स यहां से इधर चली गई, तीसरी फोर्स इधर चली गई, चौथी फोर्स इधर चली गई, पांचवी फोर्स इधर चली गई, तो एक सिंगल लाइन ऑफ एक्शन नहीं है। इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है। बल्कि कोलिनियर में हमने क्या पढ़ा था कि एक ही लाइन में अप्लाई हो रही है। ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन सभी फोर्सेस का सेम है, वो होती है कोलिनियर। अगर लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है तो वो कौन सी फोर्सेस होंगी? नॉन कोलिनियर। सभी को क्लियर है यहां तक? आई थिंक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा है नॉन कॉन्करेंट एंड पैरेलल नॉन पैरेलल। So non-concurrent is further divided into two parts, that is parallel and non-parallel. So if we discuss about non-concurrent, non-concurrent forces कौन सी होती हैं? जो एक ही पॉइंट पर नहीं लग रही। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक लाइन है, सपोज मेरे पास ये एक लाइन है, तो नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस कौन सी है? जो एक पॉइंट पर नहीं लग रही। यानी एक फोर्स मेरी कहाँ जा रही है? ऊपर जा रही है, एक फोर्स इधर जा रही है, एक फोर्स उस तरफ जा रही है। ठीक है जी, तो ये सभी क्या है? आपकी नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस हैं, एक ही पॉइंट पर अप्लाई नहीं हो रही, ना ही एक ही पॉइंट से निकल रही है। तो ये कौन सी फोर्सेस है? नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस। अगर मैं बात करूं पैरेलल और नॉन पैरेलल की, यानी नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस हैं, वो दो स्टेप में हमने फर्दर डिवाइड किए हैं। सबसे पहली है आपकी पैरेलल फोर्सेस और दूसरी है नॉन पैरेलल फोर्सेस। अगर मैं बात करूं पैरेलल फोर्सेस की,
तो जो फोर्सेस बिल्कुल पैरेलल है, जैसे ये जो फोर्सेस आपको दिख रही है, ये बिल्कुल क्या है, पैरेलल है। ठीक है जी। तो जो फोर्सेस पैरेलल है वो कौन सी होती है, नॉन कॉन्करेंट पैरेलल फोर्सेस होती हैं वो। और अगर मैं बात करूं नॉन पैरेलल की, तो फोर्सेस कौन सी होंगी, एक फोर्स ऐसे जा रही है, एक फोर्स ऐसे जा रही है, या फिर वो एक फोर्स ऐसे है, एक ऐसे जा रही है। ठीक है। तो जो फोर्सेस बेसिकली पैरेलल नहीं है वो कौन सी होती है, नॉन पैरेलल फोर्स। क्लियर है सभी को। और सबसे पहला था आपका कोप्लेनर फोर्सेस, इसको भी मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूँ। तो आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो बेटा आप चैट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हो, या फिर आप रेज हैंड का बटन क्लिक करके बोल सकते हो कि सर मुझे ये पॉइंट समझ नहीं आया। तो कोप्लेनर फोर्सेस में मैंने आपको बताया था कि जो फोर्सेस एक ही प्लेन में लग रही हैं, यानी मैं आपको पहले बनाता हूँ प्लेन। ये मेरा प्लेन बन गया, कौन सा प्लेन है ये, एक्स एंड वाई। मैंने यहाँ पर लिख दिया एक्स एक्सिस, और यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, वाई एक्सिस। ठीक है जी। तो अगर इसी प्लेन में फोर्स लग रही है तो वो कौन सी होगी, कोप्लेनर। एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको डायग्राम बना के बताऊं, तो बेसिकली एक फोर्स यहाँ पर लग रही है, ठीक है जी, एक फोर्स इस तरफ चली गई, दूसरी फोर्स यहाँ चली गई, ठीक है, एक फोर्स ऐसे आ गई। तो एक ही प्लेन में लग रही है फोर्सेस। मैं यहां से भी फोर्स लगा सकता हूँ, ठीक है, या यहां से कोई बस अंदर को आई है, यहां से एक फोर्स चलेगी। ठीक है जी, क्लियर है आपको। तो मैंने डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कलर से आपको बता दिया कि डिफरेंट फोर्सेस को क्लासिफाई करने के लिए मैंने अलग अलग कलर यूज किए। ठीक है। तो ये कौन सी फोर्सेस है, कोप्लेनर फोर्सेस है, क्योंकि ये एक ही प्लेन में लग रही है। अगर मैं बात करूं कि बेसिकली कोप्लेनर फोर्सेस और नॉन कोप्लेनर फोर्सेस में क्या डिफरेंस है, तो अगर मैं बाकी प्लेन्स बनाऊं, एग्जांपल के लिए आपको डायग्राम से बता रहा हूं मैं। सपोज ये मेरा है वाई प्लेन, ये मेरे पास है एक्स प्लेन, तो ये कौन सा होगा, जेड एक्सिस होगा। ठीक है। या फिर अगर मैं किसी बुक का एग्जांपल दूं, ठीक है, आप यहाँ पर कैमरे में देख सकते हो, ये मेरे पास एक बुक है, ठीक है। तो जो बुक की ये सरफेस है, ये कौन सा है, एक्स प्लेन। अगर इस बुक को मैं ओपन कर देता हूं ऐसे, तो मेरे पास कौन सा प्लेन आ गया, एक्स एंड वाई प्लेन आ गया। ठीक है जी। तो जेड प्लेन कौन सा है, जो बुक की थिकनेस होगी, ठीक है, किस तरफ को। अगर आप एग्जांपल हो किसी दीवार का, तो जहां पर आप फ्लोर पर बैठे हो, ठीक है, जिस फ्लोर पर आप बैठे हो वो कौन सा प्लेन है, एक्स प्लेन है। और दीवार जिस तरफ ऊपर जा रही है वो कौन सा प्लेन है, वाई प्लेन है। अगर आप दूसरी दीवार की तरफ देखो जो साथ उसके अटैच है, तो वो कौन सा प्लेन होगा, जेड प्लेन होगा। ठीक है। तो इसलिए मैं आपको डिफरेंट एग्जांपल से बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो यहाँ पर मैंने डायग्राम बना दिया एक्स प्लेन का, वाई प्लेन का और जेड प्लेन। तो तीनों प्लेन्स आपको विजिबल हो रहे हैं। ठीक है। सबसे अच्छा एग्जांपल है, अगर आप अपने घर पर कोई दीवार देखो, कोई कॉर्नर देख लो, कॉर्नर में जो आपकी राइट साइड में दीवार जा रही है वो है एक्स प्लेन, जो लेफ्ट साइड में ऊपर को जा रही है दीवार वो होगी वाई प्लेन, और जो इस तरफ आपकी दीवार नेक्स्ट तरफ जा रही है वो कौन सा होगा, जेड प्लेन। तो अभी हम 3D डायग्राम नहीं बना सकते, इसलिए मैं आपको ऐसा डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ, एक्स वाई जेड। ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करता हूं मैं नॉन कोप्लेनर फोर्सेस, तो नॉन कोप्लेनर फोर्सेस कौन सी होती हैं। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक फोर्स अप्लाई हो रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो अभी तो मैं सिंगल प्लेन में ही हूँ, एक्स वाई वाले प्लेन में हूँ, और किसी प्लेन में तो नहीं गया मैं। ठीक है। अगर मैं बात करूं कि मैं किसी और प्लेन में जा रहा हूं, तो कहाँ होगी फोर्सेस, यानी एक फोर्सेस यहाँ से अप्लाई होगी सपोज। ठीक है। तो अभी आपकी फोर्सेस दो प्लेन में आ गई है, तो जरूरी नहीं है दो में हो, दो से ज्यादा प्लेन में भी हो सकती है। यानी एक फोर्स मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ से लग गई। ठीक है। और मैं एग्जांपल क्या दे सकता हूँ आप में इसमें,
कि एक फोर्स यहाँ से एप्लीकेबल हो गई, ठीक है। तो सभी डायरेक्शन में आपकी फोर्सेस आ रही हैं, सभी प्लेन में है, ठीक है। एक्स प्लेन में भी है, वाई प्लेन में भी है और जेड प्लेन में भी है। क्लियर है सभी को? यहां तक बेटा अगर आपको कोई भी डाउट है पूछ सकते हो आप। तो मैं डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस से आपको एग्जांपल दिया है, कौन सी फोर्स कहाँ जा रही है। जरूरी नहीं है ये फोर्स पैरेलल हो या नॉन पैरेलल हो, अभी हम सिर्फ एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं। तो फोर्स किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, ठीक है। किसी को डाउट है कोई यहाँ तक? तो ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, कौन सी फोर्स का एग्जांपल दिया है? ये एग्जांपल है नॉन कोप्लेनर फोर्सेस का। तो आपको डायग्राम विजिबल हो रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, सभी प्लेन्स में फोर्स लगा दी। अगर सिर्फ एक्स वाई में होती, यानी अगर सिर्फ इसी प्लेन में फोर्स होती तो कौन सी होती? कोप्लेनर। अभी देखो वाई जेड एक्सिस में भी फोर्सेस लग रही है, तो ये दूसरा प्लेन है। जेड एक्स एक्सिस में भी फोर्स लग रही है, ये तीसरा प्लेन है, ठीक है। तो हमारी तीनों प्लेन में फोर्स लग रही है। तो जहां पर एक से ज्यादा प्लेन हो, दो या दो से ज्यादा प्लेन हो, वो कौन सी होती है? नॉन कोप्लेनर फोर्सेस होती है। तो आई होप आपको डायग्राम से क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट है बेटा यहाँ तक आपको तो पूछ सकते हो आप, ठीक है। तो नॉन कोप्लेनर में आपको बताई है कॉन्करेंट। तो कॉन्करेंट फोर्सेस कौन सी होती है? कॉन्करेंट की अगर बात करें हम, तो जो एक ही पॉइंट पर अप्लाई हो रही है, ठीक है। तो नॉन कोप्लेनर बेसिकली कौन सी होती है? जो डिफरेंट प्लेन्स में है। अब डिफरेंट प्लेन्स में डिफरेंट फोर्सेस जो एक एक पॉइंट पर अप्लाई हो रही है, वो कौन सी होगी? कॉन्करेंट। नेक्स्ट है आपकी नॉन कॉन्करेंट, यानी एक ही पॉइंट से अप्लाई नहीं हो रही, डिफरेंट डिफरेंट जगह पर हो रही। पैरेलल नॉन पैरेलल आपको बता दिया मैंने कि एक फोर्स पैरेलल है, दूसरी फोर्स नॉन पैरेलल है। तो किस हिसाब से है वो? जैसे आपको मैं डायग्राम में बताया था कि अगर दो फोर्सेस बिल्कुल ऐसे हैं, तो ये कौन सी है? पैरेलल फोर्सेस। अगर मैं बात करूं नॉन पैरेलल की, तो एक फोर्स ऐसे जा रही है, एक फोर्स ऐसे जा रही है, या इसी डायरेक्शन में इस तरफ को इंटरसेक्ट करके, तो ये कौन सी फोर्सेस हैं? नॉन पैरेलल फोर्स, ठीक है। तो नॉन कॉन्करेंट यानी एक पॉइंट से नहीं लग रही, इसका पॉइंट भी डिफरेंट है, इसका पॉइंट भी डिफरेंट। तो आई होप आपको सभी फोर्सेस के बारे में पता चल गया होगा। आपकी बुक में इसकी डिटेल डेफिनेशंस है, वो भी आप पढ़ सकते हो। तो हमने सभी फोर्सेस डिस्कस कर ली है। अगर यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। तो फर्दर हम आगे डिस्कस करते हैं कि फोर्स सिस्टम कैसे आगे लिखा है, डेफिनेशंस कैसे लिखनी है आपने। तो यहाँ पर आपको दिखाया है फोर्स सिस्टम। सबसे पहले कोप्लेनर। कोप्लेनर फोर्सेस कौन सी हैं? जो एक ही प्लेन में लग रही। डेफिनेशन की बात करें तो कोप्लेनर फोर्स सिस्टम इज वन इन विच ऑल द फोर्स लाई इन वन प्लेन। वो प्लेन कौन सा होगा? या तो एक्स वाई होगा, या वाई जेड होगा, या जेड एक्स। कोई भी एक प्लेन आपने सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब वो आपकी मर्जी है, आपने वो एक प्लेन कौन सा सिलेक्ट करना है। अगर को मैं आपको एग्जांपल दूं, तो ये आपका एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। सपोज ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, तो ये एक्स वाई प्लेन हो गया आपका, ठीक है। या वाई जेड कर सकते हो, जेड एक्स कर सकते हो, कोई भी कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा था कोप्लेनर कॉन्करेंट कोलिनियर। तो देखो हमने कैसे नाम लिखा, ये लिखा होगा कोप्लेनर, उसके बाद क्या लिखा है? कॉन्करेंट कोलिनियर। तो आपने बताना है कोप्लेनर कॉन्करेंट कोलिनियर फोर्स कौन सी होती है। जो नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे आप क्या लिखोगे? कोप्लेनर कॉन्करेंट नॉन कोलिनियर। तो ये कैसे लिखा आपने? कोप्लेनर कॉन्करेंट नॉन कोलिनियर, ठीक है जी। उसके बाद आगे जाएंगे कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट पैरेलल। नेक्स्ट क्या होगा? कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट नॉन पैरेलल। यानी अगर आपको ये लेआउट डायग्राम याद है तो आप सभी फोर्सेस को इस फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। अगर नेक्स्ट बात करें आगे, तो सबसे पहले यहाँ पर है नॉन कोप्लेनर। तो सेकंड फोर्स क्या होगी आपकी? नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट। देखो यही लिखा हुआ है यहाँ पर, देखो लिखा है नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट। नेक्स्ट फोर्स कौन सी होगी? नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट पैरेलल। देखो यही लिखा है नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट पैरेलल। उसके नेक्स्ट कौन सी होगी? नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट नॉन पैरेलल। तो आपने ऐसे लिखना है सभी फोर्सेस को।
आई होप सभी को समझ आ गया होगा। तो हमने अभी डिस्कस किया था कोप्लेनर फोर्सेस के बारे में। नेक्स्ट हमारी है कोप्लेनर, कॉन्करेंट और कोलिनियर। ठीक है, कोप्लेनर का मतलब क्या है, एक ही प्लेन में। कॉन्करेंट का एक ही पॉइंट से। कोलिनियर का एक ही लाइन में। तो हम इसको डिस्कस करते हैं। तो देखो यहाँ पर आपकी फोर्सेस है कोप्लेनर, कॉन्करेंट और कोलिनियर। तो कैसे डायग्राम बनाएंगे हम यहाँ पर। द कोप्लेनर फोर्स सिस्टम इज क्लासिफाइड एज अंडर, सबसे पहले आपका है कोप्लेनर, कॉन्करेंट, कोलिनियर फोर्स सिस्टम। तो दिस फोर्सेस कंसिस्टिंग कोप्लेनर, कॉन्करेंट, कोलिनियर सिस्टम मस्ट, तो क्या क्या होना चाहिए, एक ही लाइन में होना चाहिए, लिखा लाई इन वन प्लेन, सेम प्लेन में होना चाहिए। मीट एट अ कॉमन पॉइंट, एक ही पॉइंट पर मीट होनी चाहिए और एक ही लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए। तो ये लिखा हुआ है फिगर 2.17, ये आपको एग्जांपल दिया हुआ है कोप्लेनर, कॉन्करेंट, कोलिनियर का। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं एक्स वाई डायरेक्शन बनाऊं तो देखो ये एक ही डायरेक्शन में है। ठीक है, जेड डायरेक्शन में तो नहीं जा रही, एक ही प्लेन में है अभी ये। तो मैंने क्या किया, एक पॉइंट रख लिया इसी प्लेन में, ओ पॉइंट, उसी पॉइंट से दो फोर्सेस बना दी। तो ये पॉइंट मेरा क्या हो गया, कॉन्करेंट वाला। लाइन ऑफ एक्शन भी सेम है तो कोलिनियर हो गया। एक ही प्लेन में तो क्या हो गया, कोप्लेन। क्लियर है सभी को। तो आई होप आपको कोप्लेनर, कॉन्करेंट, कोलिनियर फोर्स समझ आ गई होगी। नेक्स्ट आपकी कौन सी फोर्स है, कोप्लेनर, कॉन्करेंट, नॉन कोलिनियर। ठीक है, अब देखो इसको क्या बताया हुआ आपको। The concurrent system consists of forces which intersect at a point called the point of concurrence. The force consisting this system must have, क्या होना चाहिए, lie in the same plane, एक ही प्लेन में है। intersect at a common point, क्यों, क्योंकि concurrent है force। not all parallel to each other, that is having different direction। तो नॉन कोलिनियर का मतलब क्या है, बेसिकली एक ही लाइन ऑफ एक्शन नहीं होगा। तो हमने क्या किया, एक प्लेन सिलेक्ट कर लिया। अब देखो एक पॉइंट से मैंने फोर्स यहाँ पर भी अप्लाई कर दी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर। तो सभी डायरेक्शन में फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। ठीक है, एक ही पॉइंट से हो रही है तो कॉन्करेंट है। एक ही प्लेन है ये, तो कौन सा है, कोप्लेनर। लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है देखो, तो क्या है, नॉन कोलिनियर। तो सभी को समझ आ गया यहाँ तक, कोई डाउट है अगर बेटा आपको तो आप पूछ सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं डायग्राम बना के समझाऊं तो मैं समझा देता हूँ वैसे भी। तो बेसिकली यहाँ पर क्या किया है उन्होंने, ये बनाया है उन्होंने प्लेन एक, ये प्लेन बना लिया मैंने एक्स डायरेक्शन और यह बना लिया वाई डायरेक्शन। तो एक्स वाई डायरेक्शन में देखो ये आपकी फोर्सेस सिस्टम में आ रही है सारी, इसी प्लेन में है, कहीं और तो नहीं है। ठीक है, तो कॉन्करेंट भी है, एक ही पॉइंट से लग रही है। और नेक्स्ट क्या है, नॉन कोलिनियर, एक ही लाइन में तो नहीं है, लाइन ऑफ एक्शन भी डिफरेंट है। तो ये कौन सी फोर्स ऑफ सिस्टम हो गया आपका, ये हो गया आपका कोप्लेनर, कॉन्करेंट, नॉन कोलिनियर सिस्टम। ठीक है, आई होप यहां तक सबको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आता है कोप्लेनर, नॉन कॉन्करेंट, पैरेलल और कोप्लेनर, नॉन कॉन्करेंट, नॉन पैरेलल। क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो आपकी नॉन कॉन्करेंट है वो दो टाइप की है। दो टाइप कौन कौन से हैं, या तो पैरेलल होगी फोर्सेस या नॉन पैरेलल होगी। तो यहाँ पर पहले हम डिस्कस कर रहे हैं नॉन कॉन्करेंट पैरेलल फोर्स सिस्टम। द फोर्स does not intersect each other. The force consisting this system must have lie in the same plane, एक ही plane में है। Should be parallel, देखो parallel है यहाँ पर। Do not intersect at a common point, एक ही point पे intersect भी नहीं कर रही। तो these forces may not have the same direction. This system is known as 2.19। तो आपको फिगर नंबर 2.19 में कौन सा सिस्टम बताया है, ये जो फर्स्ट वन है। ठीक है, तो देखो हमारी सभी कंडीशंस फुलफिल हो रही है यहाँ पर। एग्जांपल के लिए कोप्लेनर की बात हो रही है, तो देखो एक ही प्लेन है, ये हमने एक्स डायरेक्शन लिया हुआ। नॉन कॉन्करेंट यानी एक पॉइंट पे तो नहीं लग रही, देखो इसका भी डिफरेंट पॉइंट है, इसका भी डिफरेंट पॉइंट है, इसका भी डिफरेंट पॉइंट है, इसका भी डिफरेंट है, यानी नॉन कॉन्करेंट है, एक ही पॉइंट पर नहीं लग रही। पैरेलल है फोर्सेस, देखो P1 RB के पैरेलल दिख रही है आपको, P2 भी RC के पैरेलल दिख रही है। ये P1 P2 दोनों पैरेलल है, RB RC भी पैरेलल है। तो ये आपको एग्जांपल किसका दिया इन्होंने, कोप्लेन।
आई होप आप सभी को यहाँ तक सब कुछ समझ आ गया होगा कि हमने कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट पैरेलल सिस्टम को कैसे समझा। नेक्स्ट वन इज कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट नॉन पैरेलल सिस्टम। तो इसमें क्या होगा, नॉन कॉन्करेंट यानी एक पॉइंट पर नहीं होंगी, कोप्लेनर यानी सेम प्लेन पर होगी, नॉन पैरेलल यानी ऐसे नहीं होंगी, आपकी फोर्सेस इंटरसेक्ट करेंगी। तो देखो यहाँ पर आपको बताया है ऑल द फोर्सेस आर नाइदर पैरेलल टू ईच अदर नॉट इंटरसेक्ट एट द सेम पॉइंट। तो देखो ये एग्जांपल दिया है, कोई पैरेलल तो नहीं दिख रही है आपको फोर्स, ठीक है, और इंटरसेक्ट भी कर रही है इधर उधर,